Today we'll discuss role of civil services. Hopefully, entire day today and tomorrow will be devoted to discussing role of civil services and, of course, the All India services, civil servants, and role of civil services in democracy. This topic normally yields one question in the main examination. If you look at the last 10, 12 years question papers, you'll find that there have been questions on and off every 2 or 3 years. Once a question is asked from this topic, like it was asked this year in 2024. And the question primarily focuses around the issues and concerns of the civil servants. What issues plague the civil servants? And what reforms can be brought to improve the civil services in the country? Okay, so we'll move on by discussing firstly UPSC, SPSCs, the constitutional provisions, because of course these bodies are constitutional, and not just that. As Ambedkar said, this body is also one of the four pillars of the constitution. Okay, so when you have the time for the interview, you will be entering this building. So yeah. Right now in photographs, eventually if you prepare well, then you'll visit this building very soon. This is under part 14 of the Indian Constitution, services under union and states, articles 308 to 323. So first up is article 315, creation of UPSC, that is Union Public Service Commission, SPSC, that is State Public Service Commission, and JPSC. JPSC is not Jharkhand, Joint Public Service Commission. So this is a constitutional body, and two things are mandatory. There shall be a public service commission for the union. This is what is known as the UPSC. And there shall be a public service commission for each state. So, SPSC for each state. Now, what about JPSC? So, JPSC, the provisions are mentioned in the constitution on how to create. It has not been created. So, if two or more states agree that we want to have a common body which will recruit people, basically in bodies का काम क्या है? Recruit करना officers को, right? So अगर मान ले आज यूपी और बिहार they think कि एक काम करते हैं, we should have one common body which will conduct all the examinations, recruitment, posting, promotions of the officers in our state. So they can do what? Pass a resolution in their respective legislature, both in UP and Bihar, वो pass कर देंगे, and then Parliament by law will create that JPSC, which will serve the needs of UP and Bihar. So JPSC creation is by law. UPSC, SPSC creation is through the constitution. Are we clear? तो ये by law है, please circle this. अब ये provision तो कभी use होता नहीं है, and whenever you have a provision जिसका इस्तेमाल कभी हुआ ना हो या बहुत कम होता हो, we refer to it as a dead letter. एक फ्रेज यूज करते हैं कि भाई कभी यूज ही नहीं होता है, बस फॉर नेम सेक, जस्ट फॉर नेम सेक. तो ये प्रोविजन दिया गया है पर इसका इस्तेमाल कभी हुआ नहीं है. यस, इन द पास्ट वी हैव सीन सर्टेन केसेस जब कभी स्टेट्स का बाइफर्केशन होता था तो उस वक्त दे कुड हैव अ जॉइंट पीसीएस, जैसे पंजाब हरियाणा 1966 इज अ गुड एग्जांपल. बट अदरवाइज कोई भी स्टेट अपनी रिक्रूटमेंट की पार दूसरे स्टेट के साथ शेयर क्यों ही करना चाहेगा? दैट इज वाई ये सब प्रोविजंस यूज नहीं होते. एवरी स्टेट वांट्स टू हायर इट्स ओन पीपल थ्रू इट्स ओन एग्जामिनेशंस and its own control over them. इसीलिए now coming to this body, composition क्या है? So we have chairman and members. अब जो composition है वो तो by law decide होना चाहिए, but president और governors decide करते हैं through rules. Conditions of service, president
गवर्नर डिसाइड, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं द कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब हर स्टेट के लिए अपने रेगुलेशंस होंगे। यूपीएससी के लिए जो रेगुलेशन है उसको कहते हैं यूपीएससी जो रूल है, रेगुलेशन 1969। So as per this UPSC rule, यूपीएससी में एक चेयरपर्सन होगा, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स, और मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, 1 प्लस। सो यूपीएससी कैन बी एन 11 मेंबर बॉडी, ठीक है। ये है यूपीएससी का कॉम्पोजिशन। मोस्ट स्टेट्स फॉलो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ओनली, 1 + 10। और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? फॉर यूपीएससी एंड जेपीएससी द प्रेसिडेंट मीनिंग सेंटर डज इट, एंड फॉर एसपीएससी गवर्नर, स्टेट्स डू इट। कोई कमिटी नहीं, द पीएम विल, आई मीन द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ऐसा बोले, बिकॉज वो सबसे सीनियर कमिटी है। वो डिसाइड करती है, रिकमेंड करती है, कैबिनेट अप्रूव करता है, प्रेसिडेंट को भेज देते हैं, एंड द पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी या मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। आर वी क्लियर? कोई कमिटी बेस्ड अपॉइंटमेंट नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स दिस बॉडी, ठीक है। अभी कौन है चेयरपर्सन, कुछ पता है? अभी एक 83 बैच की आईएएस ऑफिसर प्रीति सुदान, वो चेयरपर्सन है। रिसेंटली डॉक्टर मनोज सोनी जो प्रीवियस फॉर्मर चेयरपर्सन थे, ही रिजाइंड ड्यू टू पर्सनल रीजंस, तो फिर प्रीति सुदान बिकेम द, who was already a member, she became the chairperson, और अभी 6 members are there। So जो बॉडी आपको हायर कर रही है वहीं पर वैकेंसी है। They can have at least 4 more members। इन 6 में से 4 आईएएस ऑफिसर्स हैं, एक आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, और एक एकेडमिशियन है। सो इन 5 में से आई थिंक 2 या 3 आईएएस ऑफिसर्स हैं, एक आईपीएस हैं, और एक आईएफएस है। सो अगेन दीज पीपल हैव, अगेन पीपल लाइक यू, या जो भी आईपीएस या आईएफएस बनेंगे उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है पोस्ट रिटायरमेंट टू बिकम मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज अ करंट मेंबरशिप। ये जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के, यही आपके बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं। जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारे पैनल्स बने होते हैं, राइट? एक ही पैनल नहीं होता, क्योंकि 3000 लोगों का इंटरव्यू करना है, और टाइम सिर्फ 1-2 महीने का होता है। तो ये जितने मेंबर्स हैं उतने पैनल्स बनाए जाते हैं, और हर पैनल में जो और भी लोग होते हैं, जैसे कोई सीनियर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या लेक्चरर होंगे, या एचओडी किसी डिपार्टमेंट के होंगे, ऐसे लोग होते हैं। और एक और मेंबर होता है जो यूपीएससी का मेंबर होता है, वो उस बोर्ड का और पैनल का चेयरपर्सन होता है, ठीक है। तो कई बार आप, अभी तो यू वोंट नो ऑल दिस, बट जब प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी और एक आध बार मेंस क्लियर हो जाएगा, देन यू विल रियलाइज, अच्छा ये प्रीति सुदान बोर्ड का मतलब क्या है, कि उस पैनल में आपका इंटरव्यू एलोकेट हुआ है जिसकी चेयरपर्सन प्रीति सुदान है, राइट? इसका भी इम्पैक्ट होता है, बिकॉज कई बार वी नो दैट देयर आर सर्टेन पैनल्स और सर्टेन मेंबर्स हु आर नोन टू बी वेरी लीनियंट, नोन टू बी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं तो भाई दीपक गुप्ता पैनल में रहता, अलका सोरही पैनल में रहता, ऐसा कुछ उम्मीद रहती है कि भाई डीपी अग्रवाल के बोर्ड में नहीं रहना है। तो वहां भी एक चांस का एलिमेंट है कि आपका एलोकेशन किस पैनल में हुआ और वो कैसे व्यक्ति है, ठीक। सो इफ दे आर स्ट्रिक्ट, नोन टू बी स्ट्रिक्ट एंड हार्श, देन थिंग्स कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो वो चांस का एलिमेंट चलता ही रहता है। एनीवे, नाउ कमिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। नो क्वालिफिकेशन टू बी अ यूपीएससी मेंबर या चेयरपर्सन, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक ही कंडीशन है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से हाफ ऑफ देम should have at least been a government of India या government of state employee for how many years? 10 years.
10 साल तक आपने गवर्नमेंट सर्विस की है तो आप कल को यूपीएससी के मेंबर या चेयरपर्सन भी बनाए जा सकते हैं। आर वी क्लियर? अब 10 साल सर्विस कौन से लेवल पे की है, क्लरिकल स्टाफ या टॉप लेवल, वो सब नहीं लिखा है। पियोन थे 10 साल के लिए, बन गए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ऐसा होगा नहीं, बट इट इज नॉट क्लियर। अच्छा, नॉर्मली वी हैव दीज कमीशंस एंड कमिटीज टू गिव रिकमेंडेशंस, है ना। कमीशंस बनाई जाती हैं टू रिकमेंड थिंग्स। अच्छा, जो भी कमीशन है वो जब भी कुछ रिकमेंड करता है तो इसके पीछे एक अंडरलाइंग फीलिंग ये है कि रिकमेंड इसलिए किया गया है बिकॉज वो चीज नहीं हो रही है। यस और नो? अगर होगी तो रिकमेंड क्यों करेंगे? फर्स्ट एआरसी, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था 1966, उसने रिकमेंड किया था कि जो मेंबर्स ऑफ दीज कमीशंस हैं वो कम से कम ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए भाई। अब ऐसा रिकमेंडेशन क्यों करेंगे? मे बी शायद टिल 1960s ऐसा हुआ हो कि कुछ एसपीएससीज में जो मेंबर्स हैं वो नॉन ग्रेजुएट हो गए होंगे, वो भी बन गए मेंबर्स, तभी तो ऐसा रिकमेंडेशन है, राइट? तो दैट इज स्ट्रेंज, और इसका डेटा तो है नहीं अपने पास, बिकॉज एसपीएससीज का डेटा निकलवाना इज इम्पॉसिबल। पहले तो सारे स्टेट्स में फाइल करो, वो कहाँ होगा डेटा 50s का, वो तो होगा ही नहीं, वो तो खो चुका होगा। बट यस, रिकमेंडेशंस यही लगता है कि मे बी ऐसा था, कुछ एसपीएससीज में ऐसे भी लोग थे मेंबर्स जो हायर कर रहे थे गजेटेड ऑफिसर्स को और खुद ग्रेजुएट भी नहीं थे। पॉसिबल। टेन्योर 6 years and 65 for SPSC and JPSCs, ये जस्ट लाइक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट एज कितनी है जज की? 65। हाई कोर्ट जज 62। सो यहाँ 65 है, यहाँ 62 है, लेकिन द टेन्योर इज 6 years फॉर बोथ। सैलरी, चेयरपर्सन की सैलरी 2.5 lakhs, मेंबर की सैलरी 2.25 lakhs। क्लियर? और the salaries and emoluments of UPSC members and chairperson are mentioned in which schedule? 2 or 3? 2। 3 में क्या है और 2 में क्या है? सैलरीज। किन किन की सैलरीज है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, सीएजी, और बस इतना ही। इनकी सैलरी वहां मेंशन नहीं है, ठीक है? उतनी लोगों की सैलरी है। सो इलेक्शन कमिश्नर्स की या यूपीएससी मेंबर्स की सैलरी या ओथ वगैरह मेंशन नहीं है इन शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। सीएजी की सैलरी मेंशनड है, नॉट यूपीएससी मेंबर्स एंड इलेक्शन कमीशन मेंबर्स। अब रिमूवल, रिमूवल इज इजी। आर्टिकल 317 टॉक्स अबाउट रिमूवल। सो वही ग्राउंड है, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, और पता ही हमें कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जहां पर रिमूवल कैसे किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। सो यहां होती है सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, ओके, एंड द प्रेसिडेंट विल रिमूव if the Supreme Court inquires and finds the allegation to be true. So on ground of misbehavior. अच्छा, ये misbehavior as a word कहीं डिफाइंड है क्या? We have seen this ground in so many places, है ना? सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करना है, मिसबिहेवियर। सीवीसी मेंबर्स, मिसबिहेवियर। सीआईसी, मिसबिहेवियर। ये क्या है मिसबिहेवियर? इज इट डिफाइंड एनीवेयर या बस केस टू केस बेसिस होता है? इट इज केस टू केस बेसिस, बट कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह पर एक टाइप ऑफ मिसबिहेवियर डिफाइंड है, वो यहां पर। सो misbehavior, you can mention this, also includes paid employment in the private sector. अगर कोई यूपीएससी का मेंबर किसी भी प्राइवेट कंपनी से कुछ पैसे ले रहा है to provide some services, just like no, working apart from UPSC,
तो फिर उसको मिसबिहेवियर बोला जाएगा, या फिर उसको भी मिसबिहेवियर बोला जाएगा। आर वी क्लियर? सो ऐसा नहीं कि यही सिर्फ होता है, ये भी होता है मिसबिहेवियर, और सारी जगह का मिसबिहेवियर के बदले एक ही डेफिनेशन, इट्स मेंशन्ड ओनली एट वन प्लेस, दैट इज हियर, बाकी सब सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक आपके नेबरिंग स्टेट ही है, वहां पर एसपीएससी की मीटिंग हो रही थी और मारपीट शुरू हो गई मेंबर्स के बीच में ही। जो हायर करते हैं लोगों को, उन्हीं वही मारपीट कर रहे थे, और मारपीट में जो एक मेंबर थे उन्होंने चेयरमैन को चांटा मार दिया, तो ये उनको निकाल दिया गया। वे कोर्ट में बात पहुंची कि भाई ये कैसे कैसे निकाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्टेटमेंट आया, स्लैपिंग ऑफ वन मेंबर टू अनदर ऑन द फेस इज ऑल्सो कॉल्ड मिसबिहेवियर। तो बताना पड़ा, या किसी को चांटा मारते हैं चेहरे पे भी, बाकी जगह नहीं शायद, पता नहीं वाई ऑन द फेस वॉज मेंशन, पता नहीं, बट ये एक मिसबिहेवियर होता है। सो और भी चीजें हैं, बट दिस इज डिफाइंड हियर। ये क्लॉज 4 है। तो ये है क्वालिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एसपीएससी। रिमूवल, शुड यू प्रोसीड? ओके, देन अदर प्रोविजंस। अच्छा, एक और चीज आप यहां नोट कर लें प्लीज। व्हेन इट कम्स टू द रिमूवल, बोथ एसपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, रिमूवल प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन suspension can be done by the president for UPSC, JPSC and governor, नीचे लिख लें, governor for SPSC. So governors remove तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन suspend कर सकते हैं members को। और just to clarify, suspension is not punishment, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर रखा है। सस्पेंशन क्यों करते हैं? सस्पेंशन इज डन सो दैट द इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड फेयरली। अगर मान ले आपके खिलाफ कोई शिकायत हो गई और आप स्टिल उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इंक्वायर कैसे करेंगी? हो सकता है आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय ही कर दें वहां बैठ करके, इसीलिए आपको सस्पेंड कर दिया जाता है कि अभी आप ऑफिस मत आओ, 1 महीने इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने दो। उसको पनिशमेंट नहीं देखते, ठीक है? वो होता है टू इंश्योर फेयरनेस इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, वो प्रोसीजरल चीज है। तो हम ऐसा मानते हैं कि सस्पेंशन इज लाइक पनिशमेंट, बिकॉज सैलरी मिलती नहीं है सस्पेंशन में, कम मिलती है, बट एक बार अगर आपके नाम क्लियर हो गया तो जो भी आपकी सैलरी थी जो नहीं मिली थी सब वापस मिल जाती है आपको, ठीक। देन सम अदर थिंग्स लाइक पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड द पावर्स ऑफ पीएससीज। पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन बाय लॉ, मीनिंग बाय अ simple majority, extend the power of the public service commissions. Salaries तो चार्ज एक्सपेंडिचर होती है। यूपीएससी ऑन सीएफआई, एसपीएससी, जेपीएससी ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सैलरीज, चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब है, जिनको नहीं पता, नो वोटिंग, डायरेक्ट अप्रूवल। और हर साल जैसे बाकी बॉडीज होती हैं वैसे यूपीएससी भी एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं और प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। जेपीएससी, एसपीएससी एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं और सबमिट करते हैं टू द किसे? गवर्नर, ठीक है? सो यूपीएससी विल सबमिट टू द प्रेसिडेंट and SPSC, JPSC to the governor। और जब ये रिपोर्ट मिलता है टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनका काम क्या है? टेबल दिस इन द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है?
Are we clear on this? So this is with respect to the miscellaneous provisions of our members. अब आते हैं इनके फंक्शंस पे. इनके दो फंक्शंस होते हैं, एक मैंडेटरी फंक्शन है, एक एडवाइजरी फंक्शन है. सारे फंक्शंस लिखे हैं आर्टिकल 320 में. यहां पर आर्टिकल्स आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट. ओके, सो मेजर काम क्या है इनका? टेल मी. रिक्रूटमेंट करना, एग्जाम कंडक्ट करना, और वो मैंडेटरी है. तो ऐसा नहीं कि आज यूपीएससी के नहीं, इस साल तो मन नहीं कर रहा, कौन क्वेश्चन बनाए उतने सारे, नहीं नहीं अगले साल करते हैं, वैसा पॉसिबल नहीं है. कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट रेस्पेक्टिवली. सो यूनियन का जो एग्जाम है वो लेता है यूपीएससी, और स्टेट्स के लिए एसपीएससी या फिर जेपीएससी अगर हो तो ये मैंडेटरी फंक्शन है, ड्यूटी. ठीक. आर वी क्लियर? अच्छा, अब यूपी में अगर रिक्रूटमेंट करना है फॉर ये बीडीओ, डीएसपी वगैरह, कौन एग्जाम कंडक्ट करता है? एसपीएससी. क्या ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर सकता है फॉर स्टेट्स? इट माइट इंपैक्ट फेडरलिज्म. कर सकता है, कंडीशन है. यूपीएससी में ऑल्सो सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट. कर सकते हैं इफ रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर. तो यूपीएससी को गवर्नर रिक्वेस्ट करे कि भाई प्लीज आप जरा मेरे स्टेट में एग्जाम कंडक्ट कर दीजिए, और यूपीएससी प्रेसिडेंट से परमिशन ले ले तो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंडेटरी नहीं है. सिक्किम, आई होप यू आर अवेयर कि सिक्किम initially was not a part of India post independence. 1974 में सिक्किम became an associate state. एक सेपरेट आर्टिकल 2A ऐड किया गया था, सेपरेट शेड्यूल 10 ऐड किया गया था सिक्किम के लिए कि भाई थोड़े दिन तक रह के देखो इंडिया के साथ कैसा लग रहा है, राइट? तो एक साल बाद दे सेड मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, वी वांट टू फुली मर्ज विथ इंडिया. तो 1975 में दे फुली मर्ज विथ इंडिया, राइट? लाइक लिव इन फर्स्ट इन मैरिज लेटर, वैसा कुछ. तो फिर क्या हुआ कि 1975 व्हेन दे मर्ज विथ इंडिया, अब प्रॉब्लम ये है कि उनको भी सारे रूल्स फॉलो करने थे, हायरिंग एटसेट्रा. दे डिड नॉट हैव द एक्सपर्टीज ऑन व्हाट इज अ पैरामीटर बेस्ड ऑन विच हायरिंग होती है कंट्री में. गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सूटेबल कैंडिडेट कौन हो सकता है, कैसे टेस्ट करें, ये सारी चीजें. तो सिक्किम ने बोला यूपीएससी से कि यूपीएससी प्लीज एक आध साल हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कर दें ताकि हम भी देख लें कि आप हायरिंग कैसे करते हैं, फिर सिक्किम हायरिंग शुरू कर देंगे अपनी. तो 1975 यूपीएससी गॉट दिस एंड दे सेड ओके नो प्रॉब्लम, एंड दे ऑब्लाइज्ड बाय कंडक्टिंग एग्जाम्स फॉर सिक्किम. क्लियर? बाद में सिक्किम हैड इट्स ओन पीएससी और उन्होंने अपना एग्जाम शुरू कर दिया. कई बार ऐसा होता है कि ये चीज यूज की जाती है बट फॉर रॉन्ग रीजंस. अब देखिए, हम सभी को पता है कि एसपीएससी काफी फेयर और ट्रांसपेरेंट होते हैं, राइट? और हायरिंग काफी अच्छे से होती है, टाइमली मैनर में होती है. हाँ, अब तो खैर शायद एक्चुअली हो रही है टाइमली मैनर में, बट आज से 10 साल पहले बहुत ही बुरा हाल था. तो आज भी है. तो जैसे, हाँ, दिस इज अ स्टैंड. जैसे कुछ बातें हमें यूनाइट करती हैं, जैसे करप्शन, जैसे एसपीएससी की ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस. अभी लास्ट डे वाज टेकिंग क्लासेस इन हैदराबाद, तो वहां पता चला कि 2 बार एग्जाम हो चुका है टीपीएससी का, और बार बार एग्जाम होके कैंसिल हो जाता है. सपना दिखाते हैं और वो कैंसिल कर देते हैं. तो ये सब चीजें चलती रहती हैं. तो ऐसे ही एक वेस्टर्न स्टेट है पंजाब. अब अभी तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है, खासकर सोशल मीडिया है, तो बहुत लाइमलाइट में चीजें आ जाती हैं और पीपल ऑल्सो आर वेरी अवेयर. लेकिन पहले थिंग्स वे डन फ्रीली, तो मार्केट में रेट्स ओपन रहते थे कि भाई अगर आपको डीएसपी बनना है तो दो 80 लाख रुपए. आज नहीं, आज तो ज्यादा होगा शायद, मतलब ये बात है 25 साल पहले. तो आप समझ लें कि 80 लाख दे के आप डीएसपी बन रहे हैं, दिस मीन्स कि कितनी रिकवरी हो सकती है. तो
ऐसे केस में इट हैज हैपेंड दैट एक मेंबर को डिसमिस किया गया है फ्रॉम सर्विस बिकॉज ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, इन द फैग एंड ऑफ 2007-8 की बात है, जो पंजाब के एसपीएससी चेयरमैन थे और सीएम थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था थोड़ा, हायरिंग कैसे करनी है। सीएम वांटेड अ डिफरेंट पैरामीटर, एसपीएससी वांटेड अ डिफरेंट पैरामीटर। अब लोगों का ऐसा मानना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए था क्योंकि जो शेयर था उसका डिवीजन में वो लोग खुश नहीं थे, ज्यादा परसेंटेज चाहिए था। ये पता नहीं, ये तो अंदरूनी बातें हैं भाई, ये कैसे बताएं। तो अल्टीमेटली द सीएम वाज सो अनॉयड कि सीएम अप्रोच यूपीएससी ओनली कि भाई कोई पैसे नहीं कमाए, एग्जाम कंडक्ट अब में से कोई नहीं करेगा, यूपीएससी करेगा। ही अप्रोच द गवर्नर, गवर्नर रिक्वेस्टेड यूपीएससी प्लीज कम एंड कंडक्ट एग्जाम्स फॉर पंजाब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी सेड जी नहीं, वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस, आपके पर्सनल डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे बैठ करके, अपने एग्जाम को कंडक्ट करो। यूपीएससी ने रिफ्यूज कर दिया था। सो ये तो हो गया था, बट फॉर पंजाब इन 2008 refused by यूपीएससी। तो ये भी एक चीज है। तो यहां पर यूपीएससी के लिए मैंडेटरी नहीं है, दे मे नॉट, लेकिन एक चीज मैंडेटरी है। अगर मान ले 2 और मोर स्टेट्स फील कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी टेक्निकल है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हायर कैसे करें लोगों को, क्या स्किल सेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज लेट्स से यूपी और एमपी दे फील कि हमारे स्टेट में साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं और साइबर क्राइम्स को कर्ब करने के लिए वी वांट अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम जिनके टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा हों, पर उसमें क्या सवाल पूछा जाए, पेपर कैसे सेट किया जाए, ये कुछ समझ नहीं आ रहा ताकि हम बेस्ट लोगों को हायर कर सकें। सो इन दिस सिचुएशन यूपीएससी यूपी एंड एमपी दे कैन अप्रोच यूपीएससी की सर ऐसा है कि ये जो एग्जाम है इसके लिए आप रिक्रूटमेंट कर दें बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं ये कुछ यूनिक लग रही हैं। उस सिचुएशन में यूपीएससी मस्ट ऑब्लाइज। ड्यूटी ऑफ यूपीएससी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 or more states to assist those states in framing and operating schemes, frame करना, ऑपरेट करना, schemes of joint recruitment for any service for which candidates possessing special qualification are required। आपके स्टैंडर्ड एग्जाम्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, पर अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला कोई एग्जाम आप कंडक्ट कराना चाहते हैं, यू कैन अप्रोच यूपीएससी एंड दे आर ऑब्लाइज्ड टू हेल्प यू। मना नहीं कर सकते, लिखा है ना ड्यूटी, मैंडेटरी। यहां पर मे है, मीनिंग ऑप्शनल। These words have a meaning. Duty is mandatory, shall is mandatory, may is optional. Are we clear? ये तो mandatory functions है। अच्छा, if you read the first line, conduct examinations for appointment to services of union. Services of union क्या होती हैं? IAS, IPS, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, नो होती है ना, ग्रुप सी, ग्रुप डी भी। तो यहां तो लिखा है सर्विसेज ऑफ यूनियन, बट डज यूपीएससी कंडक्ट एग्जाम्स फॉर ग्रुप डी, क्लरिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ग्रुप सी? नो राइट, ओनली ग्रुप ए। ये कैसे हो गया? उन्होंने खुद से ही किया है। Nowhere is it mentioned that UPSC must confine itself to only selecting for top posts. This has been done by them on their own कि हम तो elite लोगों को चुनेंगे बस। अब बाकियों के लिए क्या है? तो 1967-68 में एस्टिमेट्स कमिटी, एक पार्लियामेंट्री कमिटी है, फाइनेंशियल कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी, उसने रिकमेंडेशन दिया कि एक बॉडी बनानी चाहिए जो कि ग्रुप बी, सी, डी एम्प्लॉइज को भी हायर कर सके। तो फिर 1975 में फाइनली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, नॉट इवन स्टैट्यूटरी बॉडी,
एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई जो हायर करती है सारे ऐसे स्टाफ को, जिसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हर स्टेट के लिए सेपरेट होता है, सेंटर के लिए भी सेपरेट है। आर वी क्लियर? और आपको हायर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और बाकियों को हायर करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस डाउन समवेयर, आई विल डिक्टेट। In 1975, comma, Staff Selection Commission, Staff Selection Commission, देखिए ब्रैकेट में, an executive body. In 1975, Staff Selection Commission, ब्रैकेट में an executive body, close the bracket, was established to recruit ग्रुप बी, लिखिए ब्रैकेट में मेजॉरिटी, ग्रुप बी ब्रैकेट में मेजॉरिटी, कॉमा, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज। एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज। अभी ग्रुप बी मेजॉरिटी इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार यूपीएससी में हायर सम ग्रुप बी पोस्ट विच आर गजेटेड पोस्ट्स, तो हायर कर लेते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप बी, जितने असिस्टेंट्स रैंक पोस्ट होती हैं वो सारी, जितने क्लरिकल स्टाफ होते हैं वो सारे, और जितने सफाई कर्मचारी, दफ्तरी, पियोन, मैसेंजर हैं ग्रुप डी, उन सब की हायरिंग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। आर वी क्लियर ऑन दिस? Now coming to some optional or advisory functions. So it is the यूपीएससी और एसपीएससी का एडवाइजरी फंक्शन है कि ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज, कैसे रिक्रूट करना है, एग्जाम क्या होना चाहिए, सारा एडवाइस यूपीएससी करता है। एडवाइस, ओके। फाइनल डिसीजन किसका होता है? गवर्नमेंट का। अभी अगर आपने कभी रिजल्ट देखा हो तो रिजल्ट में लिखा होता है द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स have been or are being recommended for appointment, not appointed, recommended for appointment. यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, जो उसकी ड्यूटी है, इट सेलेक्ट सम पीपल जिन्होंने अपना 3-4 साल वेस्ट किया है कुछ चीजें पढ़ने में, और फिर गवर्नमेंट को एक लिस्ट देते हैं कि ये लिस्ट है, हमने पाया कि ये है वो होनहार लोग, राइट, इनको आप हायर कर सकते हैं। हायरिंग गवर्नमेंट करती है। आर वी क्लियर? So UPSC does not hire you, it recommends your appointment, क्योंकि वो एक एडवाइजरी फंक्शन है, एग्जाम कंडक्ट करना उनकी ड्यूटी है। ठीक है, आप यहां लिख लें रिकमेंडिंग अपॉइंटमेंट्स। तो कल को ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी एक लिस्ट दे ऑफ 800 पीपल, ये लीजिए, इन्हें हायर कीजिए, और गवर्नमेंट उसको फाड़ के बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे पास अपने लोग हैं, हमारी पार्टी मेंबर्स, इनको बनाएंगे हम आईएएस आईपीएस। डोंट वरी, ऐसा होगा नहीं कभी, बट हु नोस, राइट। बट ऐसे गिव अप नहीं करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है। देन क्या प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए इन अपॉइंटिंग टू सिविल सर्विस? प्रमोशन में क्या प्रिंसिपल होना चाहिए? ट्रांसफर किस बेसिस पर होना चाहिए? सारी चीजें एडवाइस करता है कौन? यूपीएससी। क्लियर? और साथ ही साथ डिसिप्लिनरी मैटर्स भी एडवाइस करता है। अगर मान ले किसी ऑफिसर का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको सस्पेंड कर दो, उसको ट्रांसफर कर दो, उसका डिमोशन कर दो, ये भी एडवाइस करता है यूपीएससी फॉर इट्स ग्रुप ए ऑफिसर्स। अब देखिए, ये डिसिप्लिनरी मैटर्स में
यूपीएससी का एडवाइस, साथ में सीवीसी भी कर सकता है, यस और नो? वो तो सीबीआई यूज कर लेता है, लोकपाल भी. So you have three different bodies which keep a disciplinary check on you. और फिर भी मजा तब है कि इसके बावजूद करप्शन हो जाता है. नहीं, बट द रियल प्रॉब्लम इज, अगर मान ले सीवीसी लोकपाल आर एडवाइजिंग सम एक्शन कि प्लीज इसको डिमोट करो, यूपीएससी से नहीं नहीं, ये जो एविडेंस है वो लगता नहीं बहुत स्ट्रांग, कुछ मत करो. व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? अब प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, लेकिन इन दोनों के पास तो सीबीआई की एक्सपर्टीज है, सो दे आर गिविंग अ बेटर एडवाइस. यूपीएससी के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है. सो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? जो उसका मन करेगा. दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम. ज्यूरिसडिक्शनल ओवरलैप की प्रॉब्लम है ये, दैट वी डू नॉट नो कि फाइनली किसका ओपिनियन प्रिवेल्स. ठीक. सो अगेन डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर नहीं है, तीन बॉडीज एक ही काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं सबके कॉमन ओवरलैप है. ओके, शुड वी मूव ऑन नाउ? अच्छा, एक और चीज है ये, अगर आप यूपीएससी के मेंबर बन जाते हैं तो उसके बाद आप क्या एसपीएससी के मेंबर बन जाते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? और गवर्नमेंट जॉब्स का कोई ऑप्शन नहीं है. नो फ्यूचर अपॉइंटमेंट टू एनी पब्लिक पोस्ट. ठीक है, ये आपकी आखिरी सरकारी नौकरी होगी और बाय हायरिंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर आप एसपीएससी के मेंबर बनते हैं तो उसके बाद आपके पास स्कोप है, यू कैन बिकम एसपीएससी का चेयरमैन, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन बन जाओ सीधा, या फिर यूपीएससी मेंबर बन जाओ, और कुछ नहीं बन सकते. अगर आप एसपीएससी के चेयरमैन ऑलरेडी हैं तो या तो आप किसी दूसरे एसपीएससी के चेयरमैन बन जाते हैं, या फिर यू कैन बिकम यूपीएससी मेंबर, या फिर यूपीएससी चेयरमैन. अगर आप यूपीएससी के मेंबर हैं ऑलरेडी तो आपको अपने ही इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन बना दिया जा सकता है, या फिर यू कैन बिकम एसपीएससी चेयरमैन. और अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी के चेयरमैन बन चुके हैं फिर कोई स्कोप नहीं है, फिर आप माफ करो, जाओ घर बैठो, बस करो यार. राइट. सो फिर यू कैन गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड टेल देम कि ऐसे हायरिंग होती है, ये सब काम करो. क्लियर? ओके. नाउ कमिंग टू कुछ कंट्रीब्यूशन. दिस इज जस्ट, अब क्योंकि हम बुराई करने वाले हैं तो पहले थोड़ी तारीफ कर देते हैं कि भाई देखिए, वॉट एवर योर ओपिनियन इज ऑन अदर बॉडीज, जैसे एसपीएससी को लेके आपका जो भी रवैया है, आई एम श्योर यू विल नॉट होल्ड द सेम ओपिनियन फॉर यूपीएससी. वी डोंट फील वो जो एक केस हो गया वैसा. आई थिंक इन द फर्स्ट क्लास ओनली आई सेड दिस, ये सब चीजें होती रहती हैं. अल्टीमेटली कंफर्मेशन ऑफ सर्विस वो तभी होगी जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे. वो एक आध साल के लिए बीच में आप इंजॉय कर सकते हैं चीटिंग करके, बहानेबाजियां करके, जैसे इन महिला ने किया. जब भी बुलाता था एम्स तो मना कर देते थे कि भाई कोविड टाइम चल रहा है, मुझे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, शर्म आ रही है जाने में, जो भी रीजन हो इनका. पर कंफर्मेशन से पहले वो टेस्ट गवर्नमेंट का मेडिकल बोर्ड करता ही, आज नहीं तो कल, और वो रिजेक्शन होता ही. हाँ, किसी को अगर 2 सालों के लिए नौकरी चाहिए, बस प्रोबेशन कर लें, उसी बीच शादी कर लो, दहेज ले लूं, सब कर लूं, तो फिर ठीक है. तो वरना ऐसी चीटिंग वगैरह नहीं हो पाती है. राइट. तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद समटाइम सिनेमा. एक बड़ी फेमस मूवी, ऑफ कोर्स यू नो इट, राइट, वहां जो डिपिक्शन हुआ ऑफ द इंटरव्यू पैनल कि कैसे वो बायस्ड हैं अगेंस्ट अ लैंग्वेज, ऐसा नहीं होता. नोबडी इज बायस्ड अगेंस्ट एनी लैंग्वेज. राइट. अब कोई शायद इंटरनल बायस रखता होगा, ये पता कैसे चलेगा? बट जो लोग इंटरव्यू में पहुंचते हैं, दे हैव नॉट सेड कि आई फेल्ट कि बायसनेस चल रही है. अगर आपके अंदर खुद ही इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तो क्या किया जाए? सो नॉर्मली ऐसा कुछ बायसनेस नहीं होता कि आपके पिताजी अगर आईएएस हैं, आपने आके पर्ची दे दी कि सर आईएएस का बेटा हूं सर, अच्छे से आसान सवाल पूछना, कुछ नहीं होता ऐसा. सो लार्जली द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, फेयर है.
ठीक है, क्वेश्चंस कैसे सेट होते हैं, मेंस आंसर की क्या है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, पैरामीटर सिलेक्शन का क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे, विच इज नॉट फेयर, नॉट ट्रांसपेरेंट, बट फेयरनेस है, मीनिंग इक्वल चांसेस टू ऑल, ये तो है। और एग्जाम का जो प्रोसेस है काफी स्ट्रीमलाइंड है। यू नो वेरी वेल एक साल पहले ही कि अब आएगा नोटिफिकेशन, एग्जाम का डेट कौन सा होगा, मेंस एग्जाम का डेट कौन सा होगा, ऑप्शनल पेपर किस दिन होगा, सारी चीजें आपको एक साल पहले ही पता होती हैं। कोविड तक में एग्जाम कनेक्ट करा लिया, राइट? और ये एक टिपिकल पेन पेपर एग्जाम है, यहां पर ऑलमोस्ट जीरो टेक्निकलिटी है। जैसे बाकी सारे एग्जाम्स जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, कंप्यूटर पे ऑनलाइन वन डे एग्जाम है, जो भी है, ये अभी भी बिल्कुल पेन एंड पेपर एग्जाम है। तो एक लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो क्वेश्चन कर सकते हैं, बट फेयरनेस तो है एग्जाम। सो efficiency in examination, significant improvement in the timelines of examination results, such as civil services का preliminary exam results being declared in record time। अब आप देखें और भी ज्यादा फास्ट हो गया है, रिजल्ट्स कम आउट इन अ मंथ, ऑलमोस्ट अ मंथ रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं। और थैंकफुली अब नाम भी बताए जाते हैं, पहले सिर्फ रोल नंबर आया करता था 4-5 साल पहले, नाम होता नहीं था। कोई भी रैंडम व्यक्ति कहेगा मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, कौन चेक कर पा रहा है? ठीक, दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019 की नाम आ गया, एंड आई एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड। आई वाज टीचिंग एट अ प्लेस, और एक स्टूडेंट ने क्लेम कर दिया कि उसका सिलेक्शन हो गया है वहां पे, और ही वाज अ बैड स्टूडेंट, अभी पढ़ ही रहा था वो तो, और सबसे आके आशीर्वाद भी ले रहा है कि भाई हो गया सिलेक्शन, हो गया सिलेक्शन। ठीक है, हो गया होगा भाई, बिल्कुल। बहुत से बच्चे जो क्लास में चुपचाप बैठे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, सिंसियर होते हैं, यू नेवर नो। आफ्टर 15 डेज यूपीएससी ने नेम लिस्ट रिलीज कर दी, और क्योंकि इंस्टीट्यूट को तो ऐड भी करना था कि भाई हमारे यहाँ से बच्चे ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, राइट? तो सबका रोल नंबर मांगा गया, जिन्होंने क्लियर किया था, जो पुराने थे सारे के सारे, यही एक लौता नया स्टूडेंट था, बैच का स्टूडेंट था। बिकॉज नॉर्मली जितने भी क्लियर करते हैं सबका कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है, तभी तो क्लियर कर पाएंगे। तो इसका नाम ही नहीं है लिस्ट में कहीं। फिर द सेम स्टोरी की नहीं नहीं मैंने वो 9-8 का 8-9 देख लिया, पता नहीं क्या। तो हाँ, तो अब ऐसा नहीं हो पाता है सैडली कि कुछ भी बोल दिया कि हाँ सब नाम चेक हो सकता है, तो वो भी इंप्रूव हो चुका है। ठीक, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है 20 साल पहले, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री कि शादियां हो गई इस बेसिस पे कि काम करते हैं सचिवालय में, ऑफिसर हैं, क्योंकि वहां गए, किसी पियून को पैसे दिए, और वहां जो मीटिंग रूम है वहां लड़की के पिताजी से मिल लिए कि हाँ भाई, अरे तो वहां ऑफिस में मिलने गए थे, बिकॉज नॉर्मली पीपल वेरीफाई कहाँ काम करते हैं। सो लड़की के पेरेंट्स गए मिलने के लिए वहां पर, वहां ऑफिस से मिल लिया। ओह अच्छा, शादी भी हो गई, पता चला कि वो तो बेरोजगार है, 6 साल तैयारी ही कर रहा है। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता दीज थिंग्स ऑल्सो बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक, देन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में यूपीएससी हैज नाउ स्टार्टेड दिस वन टाइम रजिस्ट्रेशन थिंग। आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लें, सेम डेटा आप फिल कर दें, उस सेम डेटा से आप मल्टीपल एग्जाम्स के फॉर्म्स भर सकते हैं बिना रिपीट फॉर्म भरे हुए या डेटा भरे हुए। यूपीएससी .gov.in उनकी वेबसाइट है, और .nic.in ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है। सो upsc.nic.in, इट इज नॉट द मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट तो क्या है, .gov.in है। ठीक है, देन इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, हमेशा वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को, अपने बारे में तारीफ करते हैं कि भाई हमने तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इंक्लूसिव बना रखा है, राइट? स्पेशली फॉर पीडब्ल्यूडीज, और रिक्रूटमेंट रूल्स के वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं टू बी मोर फेयर, इक्वल चांसेस फॉर ऑल के लिए। इसके अलावा टिपिकल बातें कि स्वच्छता अभियान में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, हम साफ सफाई रखते हैं अपने ऑफिसेज में, इनिशिएटिव्स लेते हैं, योगा सेशंस के भी, क्योंकि पता ही है कि आजकल इंडिया इज अ योग गुरु, तो वो भी करना जरूरी है, तो वो भी कराते रहते हैं। और एक
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, किसी को पता है कि हिंदी का जो प्रमोशन है और ग्रोथ है वो करना यूनियन का मैंडेटरी फंक्शन या ड्यूटी है? ये पढ़ाया था, पुरानी बात। तो कौन सा आर्टिकल है वो? एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां लिखा है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी एंड सिक्योर इट्स एनरिचमेंट। हिंदी का प्रमोशन करना मैंडेटरी है। जरा स्ट्रेस मत डालें, कोई बात नहीं। आर्टिकल 351, तो उस लिहाज से यूपीएससी ऑल्सो सेज कि भाई हम भी कोशिश करते रहते हैं कि हिंदी का प्रमोशन हो सके, इनहैंस हो हिंदी का यूज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ये तो इनका कंट्रीब्यूशन इंप्रूवमेंट है आहिस्ता आहिस्ता। आर वी क्लियर? शुड वी प्रोसीड? नाउ कमिंग टू सम इश्यूज। ऑफ कोर्स फर्स्ट इशू क्लियर है, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड, नो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर मेंबर्स। दूसरा, जो ये रिकमेंडेशंस देते हैं ना, ये गवर्नमेंट कई बार रिजेक्ट कर देती है। देखिए, यूपीएससी वांट्स टू बी एडवेंचरस, कि थोड़ा इनिशिएटिव लें, यूनिकनेस हो एग्जाम में, लेकिन गवर्नमेंट डज नॉट अप्रिशिएट ऑल दिस, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम है क्लियर तो 800 लोग ही कर रहे हैं, पर इमोशनल अटैचमेंट 50-60 लाख लोगों का है, इंक्लूडिंग द फैमिली। तो प्रॉब्लम यह है कि इट अफेक्ट्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो मेजर चेंजेस गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। ठीक, आप देखें एज लिमिट बढ़ाते ही जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अटेम्प्ट्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। दो मोस्ट कमिटीज से कि घटाओ, पर गवर्नमेंट से नहीं 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 बढ़ाना पड़ेगा, वरना लोग पागल हो जाएंगे। और आप देखें, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग, जब भी कभी कुछ भी परेशानी होती है किसी को कहीं पर भी, द फर्स्ट डिमांड दैट कम्स फ्रॉम एस्पिरेंट्स, अटेम्प्ट एक्स्ट्रा करो, एज बढ़ाओ। अभी वॉट एवर ट्रांसपायर्ड इन दिल्ली, इट वॉज सच अ सीरियस इशू, लेकिन सम ग्रुप्स अमंग्स्ट अदर डिमांड विच वेरी लॉजिकल, कि भाई आपका सेंटर ढंग का होना चाहिए, बेसमेंट में सेंटर चलाना बंद करो, दैट इज अ लॉजिकल डिमांड, वो करो ना डिमांड। सम सीनियर एस्पिरेंट सेड अटेम्प्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए। उसका क्या लेना देना आपकी पढ़ाई से? यू आर जस्ट बीइंग अ बर्डन ऑन अदर एस्पिरेंट्स जो आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट नोज की लॉट ऑफ पीपल डिमांड एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, तो हम रिड्यूस तो कर ही नहीं सकते एज को। ठीक है, तो ये भी है कि कई बार यूपीएससी वांट्स टू डू समथिंग, बट पीपल्स प्रेशर में गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट दोस रिकमेंडेशंस, ये भी होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल ये सीसैट, भाई when you study ethics you'll study about aptitude and integrity and all these things. aptitude तो एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। तो एप्टीट्यूड काफी हद तक इनबिल्ट होता है, राइट? एटीट्यूड्स कैन बी चेंज्ड, ईक्यू का ग्रोथ कर सकते हैं। तो यूपीएससी सेट और बहुत सारी कमिटीज का ऐसा मानना भी था, राइट? अलग कमिटी, होटा कमिटी, डजन्स ऑफ कमिटीज हैड सेड कि भाई एस्पिरेंट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए, एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो हो उनकी। अब एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए हम पजल्स तो सॉल्व करा नहीं सकते, एक ही तरीका है, वो है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, प्राइमरली मैथ्स, रीजनिंग और एक लैंग्वेज का टेस्ट हो गया। अब क्योंकि एग्जाम इस तरीके से हुआ, यस देयर वर सम इश्यूज आल्सो, क्योंकि एग्जाम ऐसा हुआ कि तुरंत ही सारे के सारे जो भी वनडे एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स थे, कैट वाले एस्पिरेंट्स थे, उन सब ने हेविली स्कोर किया सीसैट पेपर में, हेविली 170 180 मार्क्स, और दूसरे पेपर में 40-50 नंबर, क्लियर हो गया। 2013 में कट ऑफ 239 था फॉर जनरल कैटेगरी, 239 आउट ऑफ 400। 2014 में कट ऑफ वाज 207 और 209, 180 ले आओ पेपर 2 में, 30 नंबर पेपर 1 में, दैट्स इट, हो गया। तो यस, दिस वाज प्राइमरली मिसयूज्ड। तो अब इसको चेंज करने के बजाय, बिकॉज इतना प्रेशर हुआ फ्रॉम स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स, जिसमें आपका स्टेट भी इन्वॉल्व है, राजस्थान वगैरह, कि ये बायस्ड है, दिस इज बायस्ड अगेंस्ट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दिस इज बायस्ड अगेंस्ट द पुअर पीपल, बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग पूछ रहे हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं, विच इज अ वेरी स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट।
तो वो हटा ही दिया गया साफ। अब क्या हो गया वो, इट हैज बिकम क्वालिफाइंग पेपर। तो या तो जब लाने से पहले ही सोच लेना चाहिए था, ये सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। तो फार साइटेडनेस की तो कमी थी ही, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक्शन की भी कमी थी। तुरंत ही पिघल गए एकदम, नहीं ठीक है, देखिए लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया है, अब तो वापस लेट्स गो बैक, मेक्स नो सेंस। तो यस, रिकमेंडेशंस आर यूजुअली रिजेक्टेड। एंड एक और चीज, विदाउट adequate reasons being provided, adequate reasons प्रोवाइड किए बिना, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी रिकमेंडेशन अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप रीजन बताएं क्यों पसंद नहीं आ रहा आपको ये। देखिए थर्ड पॉइंट तो आई थिंक यू विल अप्रिशिएट ऑल्सो, है ना, एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन एसपीएससी। एलिगेशन ही है भाई, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एलिगेशन। ऐसे नहीं लिखना कि एसपीएससी इज करप्ट, हमें पता नहीं है, लोग ऐसे कहते हैं। इट इज लार्जली बिलीव्ड दैट एसपीएससी इज करप्ट। इन पॉपुलर पब्लिक परसेप्शन एसपीएससी इज सीन एज करप्ट। स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर में। अब लास्ट दो एक्सप्लेन करते हैं। एक्सेसिवली लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम्स। पहले कौन सा पॉइंट है आपके पास, सिंगल पैटर्न है ये एक्सेसिव, ये वाला, ठीक। तो आप ये एग्जाम का पैटर्न जरा समझें, पता ही आप लोगों को। तो इस एग्जाम के फॉर्म फिलिंग डेट से लेकर के रिजल्ट के डेट तक के बीच में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स निकल जाते हैं, लगभग 1.5 साल, 2-3 महीने कम। यस और नो? एग्जाम कंडक्ट करने में 1.5 साल लगते हैं, तैयारी अलग से 2 साल होती है, 1 साल 1.5 साल कोचिंग में, फिर 1 साल खुद की तैयारी। तो 4 साल में तो आपकी नौकरी मिल रही है, जिसमें तैयारी के साल इट्स ओके, जस्टिफाइड है। ये एग्जाम का 1-1.5 साल, दैट इज टू लॉन्ग। तो इस पे एक रिकमेंडेशन है, एंड द रिकमेंडेशन कम्स फ्रॉम सेकेंड ARC। अभी आपको पसंद तो नहीं आएगा रिकमेंडेशन, बट लिख लें आंसर के लिए बस, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। द एंटायर ड्यूरेशन of exam is almost 1.5 years। और होता ये है ना कि people especially from the middle class backgrounds, देखिए अभी whatever I say take it in the right spirit, ये आपके तरफ पर्सनल अटैक नहीं है, I don't know you personally, I know the UPSC aspirant background, शायद तो वो कहीं और की बात होगी शायद, बट एक जेनरिक अप्रोच ये है कि जो भी लोग एग्जाम क्लियर करते हैं यूपीएससी का, दे प्राइमरली कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड। ज्यादातर लोग अर्बन एरिया से होते हैं, पब्लिक स्कूल से होते हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग मीनिंग इंग्लिश में एग्जाम दिया होता है, और आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स भी हो गए हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग ये एग्जाम परस्यू करते हैं। भाई डोंट कोट के सर उस रिक्शे वाले बच्चे ने कर लिया था, वो तो ठीक है, दैट इज अ प्रोडिजी, वो कभी कभी होता है। अंबानी का बेटा भी एग्जाम नहीं देगा, वो क्यों ही देगा, वो आपके बॉस मिनिस्टर को खरीद रहा है, से बातें कर रहा है, बहुत गरीब, ये मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा शायद इसकी प्रिपरेशन को, राइट। ही डज नॉट हैव द लिबर्टी टू सिट फॉर 4 years एंड प्रिपेयर। घर में खाना चाहिए भाई, मिडिल क्लास फैमिलीज। और ये सबसे आसान तरीका है टू एलिवेट योर स्टेटस। और कुछ भी देखो एक्सेप्ट वीडियोस बनाना यूट्यूब पे, वो पता नहीं, वो उसके लिए स्किल चाहिए शायद, बेशर्मी का, या जो भी स्किल चाहिए, कोई भी स्किल सेट। यू वांट टू बी अ क्रिकेटर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंपटीशन है, और कितने रिसोर्सेज चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर में 60-70 हजार पर मंथ खर्च करना पड़ता है व्हेन यू आर अ स्मॉल किड। सेम गोज फॉर एनी अदर स्पोर्ट। पॉलिटिशियन बनना है तो चापलूसी करते रहो, एक्टर एक्ट्रेस बनना है, अगेन देयर हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वहां भी नेपोटिज्म ही है। सो फॉर एनी मिडिल क्लास पर्सन टू एलिवेट देयर स्टेटस टू एन एलीट ग्रुप,
सबसे आसान और सबसे कम पैसों में अवेलेबल तरीका है ये। आसान तो नहीं बोलना चाहिए, बट सबसे आसान है बाकी सब पे कंपैरिजन में। एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। इसलिए टारगेट है मिडिल क्लास फैमिलीज का। वंस यू एंटर अ जॉब, थिंग्स आर ओके। और सच्ची बात भी है, इट एलिवेट्स योर स्टेटस। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो ऐसा स्टेटस प्रोवाइड करे, इफ स्टेटस इज अ फैक्टर फॉर यू। तो पीपल आर अनकैरेक्टरिस्टिकली ऑब्सेस्ड विद दिस एग्जामिनेशन। बार बार एग्जाम देते रहना, 3 4 5 6 साल पूरा यूथ वेस्ट कर देना उसमें, ये होता है। और प्रॉब्लम ये है कि 8 साल बाद 10 साल बाद यू कैन नॉट क्लेम कि मैंने तो प्रीलिम्स 6 बार निकाला था, नौकरी दे दो भाई मुझे, कुछ नहीं मिलेगा। आजकल कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया था बट कुड नॉट बी सिलेक्टेड, उनके लिए कुछ पोस्ट आती हैं कि those who had appeared for UPSC interview in these 3 years can apply for a post, जहां 2 सीट्स निकलती हैं। वो एक स्कोप है एकमात्र, बट अल्टीमेटली तैयारी से कुछ मिलता नहीं है। अब आप बोल सकते हैं कि लाइफ लेसन्स मिल जाते हैं, जिंदगी से लड़ने का जज्बा मिल जाता है, वो भी तभी मिलेगा जब आपने तैयारी की ढंग से ना। वो भी नहीं किया तो यू इफ यू गो टू दिल्ली यू रियलाइज इट कि वहां 95% स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर रहे हैं। दे कम विद इन 7 days, ट्राई टू फॉल इन लव, 4 साल वही करते हैं, कभी यहां ब्रेकअप, उसका सदमा 1 साल वेस्ट हो गया, फिर अगला रीबाउंड वहां वेस्ट हो गया, या ऐसे ही दोस्त मिल गए, सच्चे यार बन गए, पार्टियां चल रही हैं, और फ्यू सक्सीड, और वहीं रहते हैं वो। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि भाई बच्चा पढ़ रहा है और फीस बहुत महंगी है, नॉट द फीस ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो तो महंगी है ही, रहना खाना। For any average aspirant, if you want to stay with minimum means in OR and old Rajnagar area, 25-30 हजार पर मंथ का खर्चा होता है। ये कितना बड़ा बर्डन है। अगर आपके पेरेंट्स आपको फील नहीं भी करने दे रहे हैं, 30,000 रुपए हर महीने खर्च हो रहा है, और ये 1 साल तक तो रहेगा ही ना, जब तक कि आप वहां तैयारी कर रहे हैं। और फिर बच्चे वहां रुकते भी हैं, माहौल चाहिए होता है, राइट। तो ये जो ऑब्सेशन है, इसको अभी अपन तो कम नहीं कर सकते, राइट। वही कहते हैं कि भाई जब आपका 10th 12th एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, आपके पेरेंट्स से बधाई दी थी आपको। सो फॉर अदर एग्जाम्स व्हेन यू सक्सीड, योर पेरेंट्स कांग्रेचुलेट यू, बट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स कई बार क्या होता है, आपके किड्स बधाई दे रहे हैं आपको, पापा ने एग्जाम क्लियर कर लिया फाइनली। आई मीन सी एवरीबॉडी हैज ओन पर्सपेक्टिव इन लाइफ। बहुतों की तैयारी लेट स्टार्ट हुई है फॉर अदर रीजंस, वो जस्टिफाइड है, बट मोस्ट पीपल यूज दिस कि नहीं टाइम लग रहा है। पर बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन रीजन के कारण स्टार्ट नहीं कर पाते प्रिपरेशन। मोस्ट स्टार्ट एंड देन दे वेट टिल 30। सो सेकेंड आरसी सेट, ये जो वेस्ट हो रहा है टाइम, इसको रिड्यूस करते हैं। हर साल 2 राउंड एग्जाम में करते हैं, और ऐसा नहीं कि यूपीएससी ये करता नहीं है। एनडीए हमें टाइम्स ट्वाइस, सीडीएस वगैरह ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना, सेम बॉडी कर रही है ना फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स। ऐसा नहीं कोई फर्जी नौकरी है वो, ठीक है, उसके इंटरव्यू ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जब वहां हो पाता है, यहां क्यों नहीं हो सकता? तो उसको शॉर्टन करने का एक तरीका सेकेंड एआरसी ने बोला। तो 2 सिनेरियोज हैं। एक तो ऐसा काम करते हैं कि प्रीलिम्स कर लिया कंडक्ट, अब गैप ऑफ 2-3 डेज दो, और आफ्टर 2-3 डेज मेन स्टार्ट कर दो सभी के लिए। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पेपर्स प्रिंट करने पड़ेंगे। एसएससी ज्यादा पेपर्स प्रिंट करता है, कोई बात नहीं, बस यही होगा एक कि खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा, प्रिंटिंग कॉस्ट। सब देंगे मेंस भी प्रीलिम्स के साथ, ठीक। अब मेंस के आंसर्स चेक करने में टाइम लगेगा, और यहां भी ये भी कर सकते हैं कि जो प्रीलिम्स है उसको पहले चेक कर लो, विद इन 5-10 डेज इट कैन बी चेक्ड। जिन लोगों के मार्क्स कट ऑफ के पार हैं, उनका ही मेंस पेपर चेक भी करो, अदर्स डोंट इवन चेक इट। वो आपके ऊपर है, इंटरनली और चीजें कर सकते हैं इसमें, ये रफ आइडिया है उनका। अब ये चीज एक साथ हो गई, 3 महीने लगते हैं आपको पेपर चेक करने में, रफली 2-3 मंथ्स।
एंड देन यू हैव द पर्सनल इंटरव्यू. ये करीबन 2 महीने में इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, 2.5 months. दैट मीन्स 3 months here, 2.5 months here. In total 6 months you can conduct the exam and then next cycle starts. Same year. दूसरा एक ऑप्शन है कि कंडक्ट द प्रीलिम्स. ठीक, बट हायर ओनली लिमिटेड पीपल. अभी क्या है कि हायरिंग होती है थोड़ी ज्यादा, करीबन 10-12 टाइम्स द वैकेंसी. फिर वहां से करीबन 3 टाइम्स द वैकेंसी लोग छांटे जाते हैं. सो आप इनिशियली ही डोंट हायर 10,000 पीपल फॉर मेंस. यू जस्ट सेलेक्ट 3-4,000 पीपल, मीनिंग 3-4 टाइम्स द वैकेंसी. 3-4 टाइम्स द वैकेंसी. उसके बाद आप कंडक्ट करें मेंस इन सभी के लिए. ठीक, और जब मेंस कंडक्ट हो जाए, गैप ऑफ 2-3 days इंटरव्यू स्टार्ट्स. While for all of them, while interview is going on, papers can be checked. कि पेपर चेक तो कोई टीचर कर रहा है, इंटरव्यू कोई और ले रहा है, कॉमन टीम तो है नहीं. सो मेंस एंड इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड टुगेदर. 3 to 4 months यहां, 2 months यहां, अगेन 6 months. तो ये है सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन. आई नो यू वॉन्ट लाइक ये क्या फर्जी काम हो रहा है भाई, वी वॉन्ट 2 years ऑफ प्रॉपर टाइम. तो वो ठीक है, बट ये रिकमेंडेशन. This can be used in answer as a suggestion to reduce the excessive time that is being consumed in conducting the examination. Are you clear? आगे बात समझ में ना, ये प्रोसेस तो समझ में आ गया. Okay. Should you proceed now? Okay. अब जो दूसरा इशू है वो है सिंगल पैटर्न एग्जामिनेशन फॉर मल्टीपल जॉब रोल्स. अब ये क्या है? तो प्लीज टेल मी, जब हायरिंग हो रही है फॉर सिविल सर्विसेज तो कौन कौन सी पोस्ट हैं बताएं जरा, कुछ एग्जांपल दें. आईएएस है, और क्या है? आईपीएस है, फॉरेन सर्विसेज, ओके, आईआरएस भी है भाई, और कुछ? आईएएस, आईआरसीटीसी. नॉट आईआरसीटीसी. ठीक, अच्छा, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, हाँ वो लिख दिया. इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, बहुत सारी हैं. ठीक, अच्छा, एग्जाम पैटर्न सबके लिए अलग है, सेम है? सेम ही है ना. वो तो रैंक कम आई तो फिर ये मिला, बढ़िया आई तो आईएएस मिल गया. नाउ थिंक ऑफ इट, 2 issues. जब एग्जाम पैटर्न सेम है, किसी ने लेट से इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर ऐसा कुछ ऑप्शन लिया, एग्जाम क्लियर किया, एंड नाउ ही हैज बिकम एन आईआरएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनके उसको नागालैंड में पोस्टिंग करा दी. अब उसके एग्जामिनेशन में जो उसने सिलेक्शन लिया है उसका उसकी पोस्टिंग से क्या लेना देना, और या वर्क प्रोफाइल से कोई रिलेशनशिप नहीं है. या एक इंडियन पोस्टल सर्विस का ऑफिसर और इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर, क्या कॉमन? नथिंग इज कॉमन, बट एग्जाम सेम ही हो रहा है. देयर आर लॉट ऑफ रोल्स विच आर वेरी जनरलिस्ट रोल्स. आईएएस, आईपीएस, इनके रोल्स जनरलिस्ट रोल्स होते हैं, और कुछ टेक्निकल पेपर्स हैं जैसे आईसीएएस, आईआरएस, ये टेक्निकल जॉब है. आपको है मैथ से नफरत, बिल्कुल समझ नहीं आता कुछ भी, 10% ऑफ 100 के लिए आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट, और आपको मिल गया आईआरएस का रोल, बिकॉज रैंक वैसी आई है ना. तो क्या करेंगे आप? एग्जाम देंगे अगली बार फिर से, नहीं हुआ तो आईआरएस ऑफिसर, मैथ्स ही नहीं आ रही, ऐड ही नहीं कर पा रहे, राइट? अलग से कोचिंग लगवा रहे हैं कि भाई मैथ्स की कोचिंग लगा दो यार. सो कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? और ये फेयर भी नहीं है, दिस इज नॉट फेयर.
तो इस पे दो रिकमेंडेशंस हैं। एक तो है जिसको वी यूज अ फ्रेज डीलिंकिंग टेक्निकल सर्विसेज। ये रिकमेंडेशन है सतीश चंद्र कमिटी ऑफ 1989। ये वो हिस्ट्री वाले नहीं है, ये दूसरे सतीश चंद्र है। 1989 में रिकमेंडेशन दी कि भाई इसको डीलिंग करो, जो टेक्निकल जॉब्स हैं उनके लिए सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराओ। ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, सीट्स बहुत कम होती है, मेजर सीट्स तो आईएएस आईपीएस की होती हैं या फिर आईआरएस वगैरह की, वो एक इंपैक्ट हो सकता है, बाकी बहुत कम सीट्स होती हैं जॉब्स की। सो ये बाद में ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक पार्लियामेंट्री कमिटी है ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, याद हमने पढ़ा था डीआरएससीज, कुछ याद है डीआरएससीज, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। कुछ कमिटी होती है, पार्लियामेंट के एमपीज होते हैं मेंबर्स, उनमें एक कमिटी है डीआरएससी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। 2017 में उस कमिटी का चेयरपर्सन बनाया गया शशि थरूर को, एंड ही गिव रिकमेंडेशंस कि आईएफएस फॉरेन सर्विस को इंप्रूव कैसे करें। तो ऑफ कोर्स और हायरिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, सारी बातें थी। एक और बात थी कि एडिशनल पेपर्स फॉर आईएफएस ऑफिसर्स। अगर आपको आईएफएस के लिए एलिजिबल होना है या सिलेक्ट होना है तो आपको 2 एक्स्ट्रा पेपर देने पड़ेंगे। आई नो यू वोंट लाइक दिस, ये फिर से और पेपर बताइए, बट हाँ दैट वाज द सजेशन, यू कैन मेंशन हियर। एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स फॉर eligibility as an IFS. Example, world history, international relations, etc. तो ऐसे कुछ बिकॉज ही सेड कि अभी जो लोग बन रहे हैं आईएफएस ऑफिसर्स उनका इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, बिकॉज मार्क्स कमाए हैं इसीलिए, वरना हर कोई तो ये बनना चाहता है आईएएस ऑफिसर, या तो किसी से बदला लेना तो आईपीएस ऑफिसर। ये तो फिर भी ठीक है, बट देन अगेन एक्यूमेन होना चाहिए। यस, ट्रेनिंग दी जाती है, बट इट इज वे इजियर टू ट्रेन समबडी हु इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन दैट रोल और पहले से ही हैज लर्नड अबाउट इट, ट्रेनिंग आसान हो जाएगी उसके लिए। तो ये रिकमेंडेशन है पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्वेंटी 2017 रिपोर्ट, जिसके चेयरपर्सन थे शशि थरूर। देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंप्रूव होनी चाहिए, जैसे इंटरव्यू का प्रोसीजर, वो बहुत ही हैपहैजर्ड सा प्रोसीजर है। देखो यू कैन प्रिपेयर फॉर मेन एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स देखो एलिमेंट ऑफ चांस तो रहेगा ही, वो तो है ही एक फैक्टर, वो तो लाइफ में ही है वो फैक्टर, कि फेयरनेस कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट यू कैन प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। लेकिन इंटरव्यू जो है ना बहुत ज्यादा चांस पर डिपेंड करता है, और वो जो इन्वायरमेंट है इट्स अ वेरी फेक इन्वायरमेंट, वैसा रियल लाइफ में कभी आपको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। पहले तो एक छोटा सा टेबल रहता है, सब वो घेर के बैठ जाते हैं, तो ये ऑलरेडी अंडर प्रेशर, वो आपको और प्रेशराइज कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ मॉक इन्वायरमेंट कि अगर आप एक्सट्रीम प्रेशर में होंगे तो कैसे परफॉर्म करेंगे। भाई आपके पूरे करियर में वैसा मौका 2 बार आएगा, और आपके लिए 50 लोग हेल्प करने के लिए, आपके सीनियर, आपके कलीग्स,
आपके जूनियर्स जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वैसा मौका कभी आता ही नहीं है इन मोस्ट केसेस। उस फेक मॉक माहौल में ऑल्सो बिगर प्रॉब्लम इज, क्या है क्वेश्चनियर का पैटर्न? क्या कोई पैटर्न फॉलो करते? नहीं, जिसको जो दिलाता वो पूछता है। कई बार आपका जो डैफ है, वो जो आप फॉर्म भरते हैं, उससे सवाल होते हैं, कई बार नहीं होते, कुछ भी पूछ रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। और फिर कह रहे हैं कि नहीं, हम तो आपका अवेयरनेस देख रहे हैं। अवेयरनेस तो आपने देख लिया ना मेंस पेपर में, यू आर अवेयर। तो नहीं, हम आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। और वहां फिर एक कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होता है जो बैठा होता है बोर्ड में, उसका काम है आपका साइको सोशल एनालिसिस करना, आपका बॉडी लैंग्वेज देखना। कोई एक्सपर्टीज नहीं उसके पास। उसने कोई 1 घंटे पहले यूट्यूब का वीडियो देखा था, हाउ टू लर्न बॉडी लैंग्वेज, और वहां बैठ गए। नहीं, अगर इतने ही अच्छे होते तो फिर कैंडिडेट्स निकल, देखो एक होता है कि आपने आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम आप सिस्टम में गए, 20 साल नौकरी की, सिस्टम ने करप्ट कर दिया आपको, फ्रस्ट्रेट कर दिया आपको कि आप भी करप्ट हो गए। नायक के अनिल कपूर क्लाइमेक्स, याद है वो सीन? उसको ही बना दिया वैसा ही। एक है कि आप जाते ही करप्ट हैं, जाते ही करप्ट मीनिंग आप करप्ट व्यक्ति थे, आपने सिस्टम को बीट कर दिया, एथिक्स के पेपर में स्कोर कर लिया अच्छे मार्क्स, इंटरव्यू में जो एनालिसिस कर रहे हैं, वाह क्या होशियार बच्चा है, कितना सीधा साधा है, उसको आपने फूल कर दिया। तो फिर दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ, जब भी कभी एक न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर करप्शन करता है, इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एंटायर एग्जाम प्रोसेस एंड द इंटरव्यू पैनल। क्या असेस किया आपने? जब मूर्ख बना ही दे रहा है आपको, तो पॉइंट ही क्या है? और किसी की पर्सनैलिटी असेस करना, व्हाट इज योर पर्सनैलिटी? योर पर्सनैलिटी इज अ सम ऑफ मे बी 20-25 years ऑफ योर लाइफ। उसको 40 मिनट में असेस करना इज इम्पॉसिबल। इसीलिए एसएसबी इंटरव्यूज देखो कैसे होते हैं, राइट? 5-6 दिन चल रहा है वो प्रोसेस। क्या ये जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। यहां ज्यादा जस्टिस फेयरनेस की बात होनी चाहिए। यहां तो लोगों से इंटरेक्ट करना है आपको, यहां तो ये और भी इंपॉर्टेंट है। 1951 में एक कमिटी थी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडी गोरवाला कमिटी। उसने कहा था कि जो सिविल सर्विसेज हैं, उसका जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो एसएसबी इंटरव्यूज के तर्ज पे होना चाहिए। 1951, आज तक नहीं हुआ। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। यू कैन मेंशन दिस पॉइंट समवेयर, बस एज अ नोट। एडी गोरवाला कमिटी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1951। इंटरव्यूज ये लिख लें पहले, एंड देन आई डिक्टेट। डन? ओके, इंटरव्यूज बाय यूपीएससी, interviews by UPSC should be conducted along the lines of armed forces interviews. Along the lines of armed forces interviews. This would just do one great thing कि जो एक और फैक्टर है ना, which is dependent a lot on chance and all, वो फिर एलिमिनेट हो जाएगा। ये भी एक चीज है। और देखो बहुत सारी और कमियां भी हैं एग्जाम में, जैसे इनका जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर डिसीजन मेकिंग ऑफ एग्जाम कंडक्ट करना बड़ा अजीब सा है। अच्छा, वी हैड 2 ऑप्शनल्स, है ना? पहले पता है 2013 से पहले 2 ऑप्शंस हुआ करते थे। 2010 से पहले प्रीलिम्स में ऑप्शन हुआ करता था। अच्छा, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों होता है? क्या पर्पस है इसका? तो इसका पर्पस है कि यूपीएससी वांट्स टू टेस्ट whether you have the scholastic
intellectual ability to develop knowledge, get information on one subject deeply or not. क्योंकि जो जीएस पेपर है वो तो जर्नलिस्ट पेपर है. क्या आपके पास वो स्किल सेट है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ तरीके से सीख पाए? इंटेलेक्चुअल डेप्थ चेक होता है. पर दो ऑप्शन क्यों होते थे? दो ऑप्शन इसलिए होते थे कि हम आपका इंटेलेक्चुअल डेप्थ चेक करना ही चाहते हैं, हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे सब्जेक्ट में जनरेट कर सकते हैं कि नहीं. बिकॉज कल को आपको 50 काम करने होंगे. डू यू हैव द स्किल टू लर्न न्यू थिंग्स और नॉट? आर यू क्लियर? सो दो ऑप्शंस मेक सेंस. इंटेलेक्चुअल डेप्थ, इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी चेक होता है. तो या तो दोनों हटा दो, क्या दोनों रखो? एक हटा दिया और एक रखा. अगेन मेक्स नो सेंस एंड दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सम ऑप्शंस आर मोर स्कोरिंग देन द अदर. क्योंकि पहले क्या था कि कुछ ऑप्शनल कॉम्बिनेशंस आप नहीं ले सकते थे विच आर वेरी क्लोज. यू हैड टू टेक स्लाइटली डिफरेंट ऑप्शनल्स. तो या तो दोनों हटा दिया होता जैसे आपके स्टेट बोर्ड ने किया है शायद, राइट, या फिर दोनों रखा होता. सैडली जो मर्जी आए, कुछ यूनिक करना था यूनिक कर दिया. ओके, तो ये सारी चीजें हैं विच क्रिएट अ प्रॉब्लम कि अभी भी दे आर नॉट एबल टू अराइव एट अ पॉइंट जहां पर कुछ यूनिक दे पाए. एंड फ्रैंकली इफ यू थिंक ऑफ इट, ये जो पूरा सिस्टम ऑफ एग्जाम है यूपीएससी का, ये तो मकौले का सिस्टम है. लॉर्ड मकौले वाज वन हु गिव दिस सिस्टम ना, कि हम रैंडमली टेस्ट करेंगे फिलॉसफी, हिस्ट्री, लॉज के ऊपर और सिलेक्ट करेंगे. ऑलमोस्ट 175 इयर्स होने को आए, यूपीएससी हैज नथिंग न्यू टू ऑफर इन द फील्ड ऑफ सिलेक्शन. कुछ भी नहीं ऑफर नहीं, वही सेम चीजें हैं. क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया होगा बट तरीका बेस वही है. तो व्हेन वी से यूपीएससी इज अ प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी, कुछ भी प्रीमियर नहीं है, कट कॉपी पेस्ट ही है ये. तो सम पीपल से दैट द घोस्ट ऑफ मैकॉले स्टिल हॉन्ट्स द यूपीएससी बिल्डिंग. तो स्टिल हॉन्ट्स द ढोलपुर हाउस जहां पर बिल्डिंग है. तो उससे बाहर निकल नहीं पाए हैं. बट ठीक है. और अच्छी बात यह है कि यूपीएससी नेवर आस्क्स दिस क्वेश्चन कि क्या प्रॉब्लम है यूपीएससी के साथ, बिकॉज आई थिंक दे फील कि ज्यादा क्रिटिसिज्म हो जाएगा, हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे शायद. सम रिकमेंडेशंस वेरी जेनरिक. अच्छा, यहां एक और पॉइंट लिख लें. फिलिंग अप वैकेंसीज. क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेंबर्स का. इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म हो. किस चीज के लिए? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स. जब स्टैट्यूटरी बॉडीज के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कमिटी से होती है, तो व्हाई शुड द गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली अपॉइंट मेंबर्स ऑफ यूपीएससी? क्यों भाई, यहां भी कमिटी हो. अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स. Then I think we know this. Shortening the exam process, हमने लिख लिया है इसका सजेशन भी. Then role based evaluation criteria, yes or no? Meaning, just to remind you, वहां पर लिख लें delinking टेक्निकल सर्विसेज. मतलब डी लिंक करो, मेन एग्जाम से उनको अलग करो. डी लिंक इट. अभी लिंक्ड है, डी लिंक इट, ताकि अलग एग्जाम हो उसका. और जो जेनरलिस्ट सर्विस हैं, आईएएस, आईपीएस वगैरह, उनका एग्जाम अलग से हो. एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एसपीएससी. अब वो तो होना ही चाहिए ताकि एसपीएससी का भी प्रॉपर कैलेंडर हो. थिंग्स लाइक यू कैन राइट फिक्स्ड कैलेंडर्स, periodic recruitments, fair and transparent recruitment policy, etc.
fixed calendar, periodic recruitments, fair and transparent recruitment policy, etc. Are they clear?